سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیٹرول بم کے حوالے سے۔ عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری۔ ذرائع کے مطابق اوگرا نے پیٹرولیم ڈویژن کو پیٹرولیم مصنوعات مارچ میں 20 روپے تک مہنگی کرنے کی سفارش کر دی۔ شہریوں نے حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز مسترد کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری۔ ذرائع کے مطابق اوگرا نے پیٹرولیم ڈویژن کو پیٹرولیم مصنوعات مارچ میں 20 روپے تک مہنگی کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز کو مسترد کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے گوہر رحمان۔ جی گوہر، بتائیے گا۔ جی بالکل، حکومت کی جانب سے مہنگائی کی چکی میں پسی عوام پر ایک دفعہ پھر سے پیٹرول بم گرانے کی انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اوگرا کی جانب سے مارچ کے مہینے میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بڑے اضافے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے سمری جو ہے وہ پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کی گئی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے سے زائد کا اضافہ کیا جائے، جبکہ جو ڈیزل ہے اس کی قیمت میں 19 روپے سے زائد کے اضافے کی سفارش کی گئی ہے۔ اگر یہ اضافے کی سفارش جو ہے منظور کر لی جاتی ہے تو پیٹرول کی قیمتوں میں ایک بڑے اضافے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے ہی جانتے ہیں۔ بتائیے گا، اوگرا کی جانب سے مارچ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری بھیجی گئی ہے، اگر سمری منظور کر لی جاتی ہے تو بڑا اضافہ ہوگا، کیا مطالبہ کریں گے حکومت سے آپ؟ ہمارا تو یہی مطالبہ ہے کہ مڈل کلاس فیملی کو، غریب طبقے کو ریلیف دینا چاہیے، لیکن ہمیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ لیکن ہماری درخواست یہی ہے کہ حکومت کو چاہیے، وزیر اعظم کو چاہیے کہ ہمیں ریلیف دینا چاہیے اور اس بل کو مسترد کر دینا چاہیے۔ آج بالکل دیکھیں، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ جو سمری جو اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم ڈویژن اور وزیر اعظم کو بھیجی گئی ہے اس سمری کو مسترد کیا جائے، کیونکہ پہلے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں خاصا اضافہ ہو چکا ہے۔ 15 دن کے دوران شکریہ گوہر رحمان تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ اسی پر شہریوں کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ پیٹرول پہلے ہی مہنگا ہے، اب اسے مزید مہنگا نہ کیا جائے، کیونکہ غریب آدمی ہے، اس کو روٹی نہیں ملتی، تو اس وجہ سے پیٹرول اگر اور مہنگا ہو گیا تو کافی مسئلے مسائل ہو جائیں گے، تو اس لیے الٹا اسے نیچے لایا جائے، مہنگا نہ کیا جائے۔ ریٹ کم ہو، ہمارے لیے بھی روزی رزق ہمارے لیے بن جائے۔ ٹھیکے کی گاڑی ہیں، ٹھیکہ بھی نہیں پورا ہوتا، فیول بھی نہیں پورا ہوتا، کماتے ہیں 400-500 کماتے ہیں، وہ گھر کے گزارے نہیں ہوتے سر ہمارے۔ اس کو کم کیا جائے، مانا ہمارے ملک کے حالات اس ٹائم اچھے نہیں ہیں، بہت اس ٹائم ہم کرپشن میں پھنسے پڑے ہیں، پیسہ ہمارا باہر نکلا ہوا ہے یہاں سے، تو ہمیں ریلیف بھی چاہیے۔ ہر طرف سے اگر سختی ہوگی نا تو پاکستانی عوام ہائپر ہوگی، غصہ کرے گی۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں ملتان میں ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنے والے ڈیفالٹر صارفین ہو جائیں تیار۔ ٹوکن ٹیکس ادائیگی کے بغیر کوئی گاڑی موٹر وے یا ہائی وے پر نہیں چل سکے گی۔ محکمہ ایکسائز کا کریک ڈاؤن کے لیے پولیس اور موٹر وے پولیس کی مدد لینے کا فیصلہ۔ ڈی جی ایکسائز نے آئی جی پولیس اور آئی جی موٹر وے پولیس کو مراسلہ لکھ دیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں، ملتان میں ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنے والے ڈیفالٹر صارفین ہو جائیں تیار۔ ٹوکن ٹیکس ادائیگی کے بغیر کوئی گاڑی موٹر وے یا ہائی وے پر نہیں چل سکے گی۔ اسی حوالے سے ہم اپڈیٹ کریں گے بلال نیازی۔ جی بلال، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ٹوکن ٹیکس ادا نہ کرنے والے جو ڈیفالٹر صارفین کیا ہوا ہے؟ ان کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی ہے کہ اب بغیر ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی کے اب جو گاڑیاں موٹر وے پر چل رہی تھی، ہائی وے پر چل رہی تھی، اب وہاں بھی ان کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس حوالے سے کارروائی کے لیے ایکسائز حکام نے مختلف محکموں سے اس حوالے سے رابطہ کر لیا ہے، مراسلہ لکھا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اس پر ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن عبداللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے، کس طرح سے ڈیفالٹرز گاڑیوں کو پکڑا جائے گا، کارروائی کی جائے گی۔ سر بتائیے گا، موٹر وے اور ہائی وے پر اس حوالے سے جو اب فیصلہ کیا گیا کہ وہاں بھی اب کارروائی ہوگی، کس طرح کارروائی ہوگی، محکموں کے ساتھ انوالو کیا جائے گا، کیا کہیں گے؟ جی ہاں بالکل جی، بغیر ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی کے گاڑیوں کو روڈ پہ لے آنا قانونی طور پہ ممنوع ہے۔ موٹر وہیکل ٹیکسیشن ایکٹ کے تحت ایسی گاڑیوں کو فوری طور پر بند کیا جا سکتا ہے، اور تو اس سلسلے میں ڈائریکٹر جنرل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب اور انسپیکٹر جنرل پولیس نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کو کل ہی خطوط لکھے ہیں کہ ایسی گاڑیوں کو نیشنل ہائی وے اور دیگر روڈز پہ چلنے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ ان گاڑیوں کا روڈ پہ آنے کا کوئی حق نہیں ہے قانون کے تحت۔ وہ تفصیلات ہائی وے کو فراہم کی جائیں گی، موٹر وے پولیس کو فراہم کی جائیں گی کہ جو وہ سسٹم سے چیک کر سکیں کہ کون سی گاڑی ڈیفالٹر ہے نہیں ہے؟ جی ہمارے سسٹم میں بالکل لسٹس موجود ہیں ایسی گاڑیوں کی جو ڈیفالٹر ہیں، ہم نے ان گاڑیوں کو سسپینڈ کر دیا ہے،
उनकी रजिस्ट्रेशन को मुअत्तल कर दिया है। रजिस्ट्रेशन मुअत्तल होने के बाद उन गाड़ियों को रोड पर नहीं लाया जा सकता। उनकी तफसीलात हम पुलिस के साथ और मोटरवे और हाईवे पुलिस के साथ शेयर कर रहे हैं। तो जल्दी वो जो है ना, जैसे भी वो गाड़ी रोड पे आएगी उसको पकड़ के बंद कर दिया जाएगा। इस हवाले से हाईवे और उसके अलावा मोटरवे पर जो गाड़ियां चलेंगी उस हवाले से सिलसिला जारी रहेगा। बिलाल नियाज़ी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हवाली में जारी तरक्याती मंसूबों बारे रवां साल के लिए फंड्स जारी। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट हसन रजा का कहना है कि 1 अरब के फंड्स जारी हो चुके हैं जो वाटर सप्लाई, सीवरेज, बिजली और दीगर स्कीम्स पर खर्च किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि रवां साल के लिए फंड्स जारी कर दिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर बताएगा। जी बिल्कुल, मियाँ वाली के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि मियाँ वाली में जारी तरक्याती मनसूबा जात जो हैं किसी सूरत रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि 2021 के लिए इन मनसूबा जात के लिए फंड जो हैं जारी कर दिए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट हसन रजा साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, जो जारी तरक्याती स्कीमें हैं 2021 के लिए इसके कितने फंड रिलीज हुए हैं सर? 2021 के लिए ऑलमोस्ट 1 अरब रुपया रिलीज़ हो चुका है और ये हम डिफरेंट स्कीम्स में, जिसमें बिजली की स्कीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जिन पे ये लगाया जाएगा। उसके अलावा हम वाटर एंड सैनिटेशन की, वाटर सप्लाई की स्कीम्स हैं और वक्तन फ़वक्तन जो इनकी कंप्लीशन टाइमलाइन है उसके अंदर इसको हम कंप्लीट करेंगे इन स्कीम्स को। तो फिलहाल अभी इन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा जो मेजर प्रोजेक्ट हैं, बिल्डिंग की बात की जाए, जो स्कूल्स की जो बिल्डिंग हैं, चापरी डैम हो गया और खटक बेल्ट में जो रोड्स हैं वो बनाए जा रहे हैं, उस हवाले से फंड की क्या सूरत हाल है? अच्छा, उसमें यह है कि जो छापरी डैम हमारा बन रहा है तहसील ईसा खेल में, वो उसमें 3 अरब रुपए उसकी लागत है प्रोजेक्ट की। और जैसा कि आप जानते होंगे कि तहसील ईसा खेल में पानी का काफ़ी पुराना मसला है, तो इंशाल्लाह इस डैम के ज़रिए से ये मसला हल हम कर लेंगे। बाकी उसके अलावा सरगोदा मियाँ वाली रोड 4.25 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। अभी पहले फेज़ में तो हमारी इसमें कोशिश ये है कि हम जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी बाउंड्री तक हम इसको कंप्लीट करें सड़क को। उसके बाद सेकंड फेज़ में हम इसको आगे सरगोदा तक कनेक्ट करेंगे। फिर उसके अलावा वाटर एंड सैनिटेशन में हमारी जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी भी स्कीम्स चल रही हैं और वो भी अराउंड 2 अरब के आसपास वो स्कीम्स हमारी चल रही हैं फ़िलहाल। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जैसे जैसे स्कीम्स कंप्लीट करते चले जाएंगे, आपको एक नुमायां फ़र्क नज़र आएगा डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली की अपीयरेंस में। जी बिल्कुल, जारी कर दिए गए हैं। अख्तर मजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावलनगर से आपको बताते हैं, आईजी पंजाब की हिदायत पर कांस्टेबलान की भर्ती का अमल जारी है। जिला भर से आए उम्मीदवारों ने दौड़ में हिस्सा लिया। महकमा पुलिस में भर्ती के अमल को आसान समझने वाले नौजवान सख्त इम्तिहान में फंस गए। कुछ उम्मीदवार गिरते पड़ते मंजिल पर पहुंचे तो कुछ रास्ते में ही रह गए। कुछ नौजवानों की दौड़ के दौरान हालत खराब हो गई। दौड़ के दौरान ड्यूटी पर मौजूद रेस्क्यू टीमें फौरी मदद को आ गई। रेस्क्यू टीम ने 7 मुतासरा नौजवानों को फर्स्ट एड दी। रेस्क्यू जराए कैसा बताना है, आपको बताते चलें। बहावलनगर में आईजी पंजाब की हिदायत पर कांस्टेबल की भर्ती का अमल जारी है। जिला भर से आए उम्मीदवारों ने दौड़ में हिस्सा लिया। उधर मुल्तान में भी लेडी कांस्टेबल की भर्ती के लिए खवातीन उम्मीदवारों की दूसरे रोज दौड़ 3 घंटे की ताखीर के बाद शुरू करवाई गई। दौड़ शुरू होते ही खवातीन के हौसले पस्त होने लगे। कुछ खवातीन उम्मीदवार मंजिल पर पहुंचने से कबल ही हिम्मत हार गईं। गर्मी की शिद्दत ने खवातीन उम्मीदवारों को दौड़ के दौरान निढाल कर दिया। खवातीन उम्मीदवारों ने 1 मील का फासला 10 मिनट में तय करना था। आपको बता रहे हैं, मुल्तान में भी लेडी कांस्टेबल की भर्ती के लिए खवातीन उम्मीदवारों की दूसरे रोज दौड़ जारी। दौड़ 3 घंटे की ताखीर के बाद शुरू करवाई गई। दौड़ शुरू होते ही खवातीन के हौसले पस्त होने लगे। कुछ खवातीन उम्मीदवार मंजिल पर पहुंचने से कबल ही हिम्मत हार गईं। और ये कैसे मुमकिन है, मेला लगा हो और शहरी जलेबियां ना खाएं। सखी सरवर रोड पर मेला मवेशिया में लोगों ने गरम गरम मजेदार जलेबियां खाने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। बात करते हैं अली मूसा रजा से। अली मूसा बताएगा। जी बिल्कुल, सखी सरवर रोड पर लगाए गए मेला मंडी मवेशियों की जो रौनकें हैं आज जुमे के रोज भी अरूज पर है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर मेला देखने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर लोग जो है मेला देखने के साथ साथ यहाँ की जो जलेबियाँ हैं मुख्तलिफ कलर्स की वो भी खाकर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर कारीगर जो है आप देख रहे हैं कि
खूबसूरत अंदाज में जो है ये वाइट कलर की जो है जलेबियाँ बना रहे हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो जलेबियाँ जो है वो खरीदने के लिए, खाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। चाचा जलेबियाँ खाते पे हो? जी हाँ, जी हाँ। जो क्या गिनते पे हो? सही 2 किलो 1.5 किलो 4 किलो जिमें जिमें हिसाब बंदा पे हर कोई खंदा पे। तू सब जो क्या करते? मैं तकरीबन किलो 2 बंदे ट्राई खादी करे आए। अच्छा, 2-3 किलो घर वास्ते नहीं दे पाए। फिर जलेबियाँ क्यों तो गुरु वंजन, बाकी को कुछ नहीं आती? बस ये अच्छी चीज है, चंगी चीज है, मजा आंदे। जी बिल्कुल, यहाँ पर सब जो लोग हैं जलेबियाँ खा रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी इस मेले को इंजॉय करने के लिए। बेटा मजा आ रहा है यहाँ पर मेले पे आके? हाँ, तो यहाँ पर उनके वालिद भी मौजूद हैं बच्चों को एंजॉय कराने के लिए। चाचे जी हाँ, ये बहुत खुश हैं। अच्छा, घर पर थे, उसने कहा कि हमें आज दिखाए मेरा जो जुम्मा है। यहाँ पर जलसे की एक खास निशानी होती है। यहाँ पर अगर कोई ये जो कैप पहन के जाता है तो यहाँ पर वो पता चलता है कि वो मेला देखने के लिए आए हुए। तो ये सब आप देख रहे हैं कि बच्चे जो है कैप पहने हुए हैं, नोटरी कूद कैप पहने, बहुत ही यहाँ पर जबरदस्त। किस जगह से हैं आप? किस जगह से हैं? डेरा गाजी खान से। कैसा लगा मेरे पे आके? बहुत अच्छा, बहुत। यहाँ सब जो लोग हैं खूब इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर जलेबी। अली मूसा रजा आप हमें अपडेट कर रहे थे। लिया में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी बहादुर सब कैंपस में शजरकारी हफ्ते का आगाज कर दिया गया। कैंपस डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल रहीम ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इसी पर बात करेंगे जाहिद सरफराज से, जाहिद बताएगा। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी सब कैंपस बहादुर सब कैंपस के अंदर आज मौसम बहार की शजरकारी का जो बाकायदा आगाज़ है वो कर दिया गया। इस वजह से अगर बात की तो एडमिन ऑफिस के सामने सब्ज़ाजार के अंदर आज जो है डायरेक्टर कैंपस डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब और इसके साथ साथ डॉक्टर ज़हूर और दीगर जो यहाँ पर स्टाफ तैनात है उन्होंने यहाँ पर अपने नाम के पौधे लगाए और इस मौके पर एक छोटी सी वाक का इनेकाद भी किया गया जिसके अंदर तलबा तालबात में भी शरीक हुए और यहाँ पर एक मैसेज दिया गया कि शजरकारी जो है वो जहाँ माहौल को साफ करती है वहीं पर मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए भी अपना अहम किरदार अदा करती है। डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आज की वाक और शजरकारी के हवाले से क्या पैगाम देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपके आने का। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हदायत के मुताबिक हम इस वीक प्लांटेशन का वीक मना रहे हैं। इस सिलसिले में मैंने अपने बहादुर साहब कैंपस BZU में डॉक्टर एजाज साहब की सरबराही में भी एक कमेटी तश्कील दी है जो कि कंटिन्यूसली प्लांटेशन करेगी। इसमें स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा और आज DSA की सरबराही में डॉक्टर ज़हूर साहब की सरबराही में भी तमाम स्टाफ ने प्लांटेशन की है क्योंकि बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री हमारे लिए वेजिटेशन प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है और इस सिलसिले में इंशाल्लाह हम कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे। जी बिल्कुल, मुसलसल जो शजरकारी का आगाज हो गया है। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लोधरा का रुख कर लेते हैं। क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। बात करेंगे मुश्ताक भुट्टा से, मुश्ताक बताएगा। बिल्कुल, जिला लोधरा में शजरकारी मुहिम जारी है। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर लोधरा ने शजरकारी मुहिम के हवाले से एक बड़ी तकरीब में शिरकत की है। मैं उनसे बात करूंगा। सर, आज कितने पौधे लगाए जाएंगे और क्या पैगाम देंगे इस हवाले से आप? थैंक यू वेरी मच। हमने क्लीन एंड ग्रीन जो हमारा पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है उसके लिए ज़िला लोधरा में इसका एक तरह से बाकायदा आगाज़ हुआ है और इसके अंदर हमारे पास जो है वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सूरत में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो लकी स्नैक्स वाले हैं वो इन्होंने 4000 पौधे एक दिन में लगाएंगे और इन पौधों का मैं साइज़ भी देख रहा हूँ, काफ़ी बड़ा साइज़ है। इसका मतलब ये कि इंशाल्लाह अगले 1-2 साल में हमारे पास ये बहुत जल्दी अवेलेबल भी हो जाएंगे और उनको मेंटेन करना भी आसान होगा। जिस तरह यहाँ पे इनका पानी का सिस्टम है, जो हमें सबसे बड़ा इशू आता है वो आता है हम पौधे लगा ज़रूर देते हैं लेकिन हमें उसको मेंटेन करना मसला होता है। और इस दफ़ा इंशाल्लाह हम ज़िले में प्लान ये कर रहे हैं कि 1,70,000 पौधे हम लगाएंगे और 1,70,000 हम डिपार्टमेंट्स के हवाले करेंगे और उसके अंदर हमारे पास जो हमें सपोर्ट मिलेगी वो LPP से बड़ी सपोर्ट मिल रही है। 30,000 पौधे हमें LPP दे रहे हैं और 20,000 पौधे LPP वाले ख़ुद भी लगा रहे हैं। और आपके नॉलेज में है कि इन्होंने एक 100 चक के पास एक अर्बन फॉरेस्ट जो क्रिएट किया है वो बड़ा ज़बरदस्त है और मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा हमारे जो बाकी भी 20,000 पौधे हैं हम अच्छी लोकेशंस पे लगाएंगे। हमने इसकी प्रीलिमिनरी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। आपकी वसातत से 2 मार्च तक मैंने इनको सबको ये टाइम दिया है अपने डिपार्टमेंट्स को कि आपने जो खड्डे वगैरह डालने हैं या जो आपने साइट सिलेक्शन करनी है वो आप कर लें और उसके बाद हम 2 से लेकर 10 मार्च तक इंशाल्लाह ताला हमारे पास पौधे अवेलेबल हैं, हम उनको लगाना शुरू करेंगे और इंशाल्लाह उसको कोशिश करेंगे मेंटेन करें। यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास लोधरा में इशू आता है, यहाँ पे बारिशें कम होती हैं तो उस वजह से नेचुरली इस्लामाबाद पिंडी वगैरह वाली साइड पे नॉर्थ में बारिशें बेहतर होती हैं तो वहाँ पे मेंटेन करना आसान होता है। लेकिन बड़ी हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ पे लोग जो हमें हेल्प आउट करेंगे और सिविल सोसाइटी की मदद से हम इसको बेहतर तरीके से मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाएंगे। बहुत शुक्रिया मुश्ताक, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
DGPHA मुल्तान से ये शफकत रजा का मुख्तलिफ पार्क्स का दौरा। DG ने सलाहुद्दीन डोगर, धोबी घाट और रहमत कॉलोनी पार्क में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। बात करेंगे अली रियाज से, अली बताएगा। बिल्कुल, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से जो मुख्तलिफ पार्कों में तरक्याती काम जारी, जिसमें सर फहरिस्त अगर जिक्र किया जाए तो सलाहुद्दीन डोगर पार्क, उसके साथ गुलगश का जो धोबी घाट पार्क है जो कि एक अरसे दराज से इल्तवा का शिकार थे, तो उनके टेंडर हो गए थे और तरक्याती काम जारी है। तो आज इसी सिलसिले में डायरेक्टर जनरल PHA सैयद शफकत रजा साहब ने दोनों पार्कों का दौरा किया, वहाँ पर जो तरक्याती काम है उनका जायजा लिया और उसके साथ साथ जो खसूसी हिदायत है वो भी जारी किया, किस तरह से काम को मज़ीद बेहतर किया जाए। मुझे तफसीलात जानते हैं, मेरे साथ DGPHA मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, काम से मुतमईन है और क्या ये जो उनका प्रोजेक्ट है कब तक मुकम्मल हो जाएगा दोनों पार्कों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास टोटल 63 पार्क्स हैं और उसमें बहुत सारे डेवलप्ड हैं। मैं डेवलप पार्क्स में भी जा रहा हूँ कि उनकी तज़ीन व आराइश में अगर कोई कमी है या कोई मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है तो वो भी हम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये जो पार्क्स हमारे अंडर डेवलपमेंट हैं जिनको हम बना रहे हैं, तो इनका तो मैंने दिन रात जो है मैंने निगरानी करनी है। और सरेदस्त जो काम हो रहा है वो ठीक हो रहा है और उसमें रफ्तार भी मुनासिब है। लेकिन चूँकि ये आवाम की सहूलत का मामला है और जहाँ पब्लिक फैसिलिटेशन की बात आ जाती है तो उसको हर मुमकिन तेज तर बेहतरीन काम को करना है। महकमा खुराक की पंजाब में गंदम पिसाई की शरह में इजाफे की तजवीज़। पिसाई की शरह में इजाफा होने से आटे के बैग की कीमत में 10 रुपए इजाफे का इम्कान। महकमा खुराक पंजाब ने नई तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी। पंजाब में फ्लोर मिल्स को 80 से 20 की शरह पर गंदम की पिसाई की इजाजत दी सकती है। आपको बता रहे हैं, इससे कबल गंदम 70 से 20 की शरह पर फ्लोर मिल्स को ग्राइंडिंग के लिए दी जा रही थी। ग्राइंडिंग की शरह बढ़ने से आटे के 20 किलो बैग पर 10 रुपए इजाफा भी तजवीज़ किया गया है। इसी पर बात करेंगे अली रामे से, अली रामे बताएगा। अली रामे से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं, महकमा खुराक की पंजाब में गंदम पिसाई की शरह में इजाफे की तजवीज़। पिसाई की शरह में इजाफा होने से आटे के बैग की कीमत में 10 रुपए इजाफे का इम्कान। महकमा खुराक पंजाब ने नई तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी हैं। अली रामे ने हमें ज्वाइन किया है, अली बताएगा। पंजाब को आसान किया गया था और इसमें कहा गया है कि इससे पहले जो शरह 70 से 20% थी उसमें अब मजीद इजाफा किया जाए। अब जो महकमा खुराक की तरफ से प्रपोजल दी गई उसमें जो ग्राइंडिंग की शरह जो गंदम की पिसाई होती है फ्लोर मिल्स के अंदर, उसमें 80 से 20% तक करने की तजवीज़ हुकूमत पंजाब को दी गई कि ये इजाज़तनामा दिया जाए फ्लोर मिल्स को। और साथ ही जब ये ग्राइंडिंग की शरह में इजाफा होगा तो उसके साथ आटे की कीमत भी 10 रुपये में मजीद इजाफा होने की तजवीज़ है, ये भी शामिल की गई। क्योंकि जब ग्राइंडिंग ज़्यादा होगी तो इससे ज़्यादा गंदम आटा जो है वो ज़्यादा मार्केट से निकलेगा, फ्लोर मिल्स के अंदर से निकलेगा, तो इससे उनको 10 रुपये मजीद इजाफा जो है सब्सिडी के तौर पर दिया जाए। लेकिन वो आटा जो 860 रुपये अब मार्केट में आम शहरी को मिल रहा है वो 875 रुपये में फरोख्त होगा। तो लिहाजा महकमा खुराक के हुकाम का ये कहना है कि अभी ये तजवीज़ है और इस पर हुकूमत पंजाब से राय दी जा रही है और हुकूमत पंजाब की मंजूरी के बाद ही इस रेशो पर फ्लोर मिल्स को गंदम जो है वो दी जाएगी ग्राइंडिंग के लिए। और जब ये ग्राइंडिंग के लिए शरह 80 से 20% की जाएगी तो इससे गंदम आटे की कीमत जो है उसमें 10 रुपये मजीद इजाफा किया जाएगा। लेकिन इसको पंजाब हुकूमत अपनी हतमी मंजूरी देगी, उसके बाद इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। नई तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी गई हैं। अली रामे, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला उमर फारूक की काबिज़ीन के खिलाफ कार्रवाइयां। 6 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 15 एकड़ जमीन वागुजार करवा ली। नवाही गांव 377 EB से 44 कनाल सरकारी अराजी वागुजार करा ली। नवाही गांव 241 EB से 3.5 कनाल जमीन वागुजार करवा ली। 427 EB से 9 एकड़ 2 कनाल जमीन काबिज़ीन से वागुजार करवा ली। उधर महकमा एंटी करप्शन सरगोदा की भी कार्रवाई। जिला भर में 236 कनाल ज़राई अराजी वागुजार करवा ली गई। लोधरा से खबर है, अड्डा शाहनाल पर जायदाद के तनाज़े पर सौतेले चचा का भतीजे पर सरेआम तशद्दुद। सौतेला चचा 5 साथियों समेत गरीब नौजवान को मारता पीटता रहा और वीडियो भी बनाता रहा। तशद्दुद की वीडियो वायरल हो गई। 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। होटल पर वेटर हूं,
सौतेले चच्चे का ऐसा बताना है। दिलशाद चंद मरले जमीन हथियाना चाहता है, मुतासरा नौजवान का ये कहना है। आपको बता रहे हैं लोधरा अड्डा शाहनाल पर जायदाद के तनाज़े पर सौतेले चच्चा का भतीजे पर सरेआम तशद्दुद किया गया। सौतेला चच्चा 5 साथियों समेत गरीब नौजवान को मारता पीटता रहा और वीडियो भी बनाता रहा। खबर है यजमान से अड्डा 13,000 के करीब स्कूल बस को हादसा पेश आया। 16 बच्चे मामूली जख्मी जबकि एक बच्चे की हालत तशवीशनाक है। शदीद जख्मी बच्चे को बहावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी बच्चों को तिबी इमदाद के बाद घर भेज दिया गया। स्कूल बस में 60 बच्चे सवार थे। हादसा ड्राइवर की गफलत और तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। बहावलनगर में तलबा का डीपीओ ऑफिस के बाहर निजी बस सर्विस अमले के खिलाफ एहतजाज। तलबा की निजी बस सर्विस के खिलाफ शदीद नारेबाजी जारी है। बात करेंगे राना फैसल रहमान से। फैसल बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, निजी बस सर्विस के खिलाफ जो है बहावल नगर के स्टूडेंट्स जो है वो डीपी ऑफिस के सामने जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और यहाँ पर जो है काफी तादाद में जो है वो यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं और यहाँ पर जो अपने मुतालबात के हक में जो है नारेबाजी भी कर रहे हैं। मेरे साथ जो मुजाहिरीन मौजूद है उनसे मजीद हम जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। क्या आप क्यों एहतजाज कर रहे हो, क्या मुतालबात है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ जो है सुबह बहुत काफी मसला पेश आया है ट्रांसपोर्ट के हवाले से। काजी एक्सप्रेस जो है वो हमसे जो है बदतमीजी करते हैं। आज 1 हफ्ता हो चुका है वो हमें लेके नहीं आ रहे। हमारा डीपी ऑफिस के बाहर एहतजाज ये है कि हमें जो है इंसाफ मिला जाए और वो सुबह जो है गुंडे लेके आए मुझे मारने के लिए तमाम स्टूडेंट को और वो बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। हम यही अपील करते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और उनको जो है अरेस्ट करना चाहिए। बुरी तरह से उनको जो है निशाना बनाना चाहिए। ट्रांसपोर्टर जो है वो जो अमला जो है बस अमला वो मारता है। एहतजाज जारी रहेगा। राना फैसल रहमान आप हमें अपडेट कर रहे हैं तो शुक्रिया आपका। अहमदपुर शर्किया चौक मुनीर शहीद पर अमला सफाई की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर नईम सादिक चीमा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा आज दूसरे रोज भी जारी। इसी पर बात करेंगे इमरान अकबर से। इमरान बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज अहमदपुर शर्किया में एहतजाजी मुजाहरा जो चौक मुनीर शहीद पर किया गया था आज दूसरा दिन उसका जारी है। इस वक्त जो है यहाँ अमला सफाई की जानिब से दूसरे रोज भी जो है एहतजाजी मुजाहरा चौक मुनीर शहीद पर जारी है असिस्टेंट कमिश्नर नईम सादिक के खिलाफ। इस वक्त इनसे जानते हैं हाँ से क्या मुतालबात हैं तुहाडे कौन नहीं मनेदा? साडे एजी साहब साडा मुतालबा नहीं मनेदा। साडा मुतालबा मान के साडी कोई होगा नहीं ना तो साडी जे तक जिंदगी है साडा जे तक मुतालबा कहना मनी सी असा इतने भूख हड़ताल करे। भूख हड़ताल की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे आप? एसी साहब क्यों नहीं मान रहे? पता नहीं सर क्यों नहीं मान रहे, किस चीज का गुस्सा है, क्या है इन्हें गरीबों से काबिल क्या है? वरना हम इमरान खान साहब से कहेंगे इमरान खान साहब हमें हमारा हक चाहिए, हम हमारा हक लेकर रहेंगे वरना नहीं उठेंगे यहाँ चौक से। हाँ जी नहीं उठा जाएगा जी। इस वक्त जो है यहाँ दूसरा दिन है एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। बहुत शुक्रिया इमरान आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबर है कबीरवाला से जहां थाना अब्दुल हकीम के इलाके जला पहाड़ में तसादुम हुआ। रिश्ते के तनाज़े पर एक शख्स जाँ बहक 2 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक की शनाख्त आबिद भट्टी के नाम से हुई। शदीद जख्मियों में हक नवाज और रमजान शामिल हैं। मुजाहिरीन का अब्दुल हकीम रोड ब्लॉक करके एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। आपको अपडेट कर रहे हैं कबीरवाला से जहां पर थाना अब्दुल हकीम के इलाके जल्ला पहाड़ में तसादुम पेश आया। रिश्ते के तनाज़े पर एक शख्स जाँ बहक हो गया। 2 शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। जाँ बहक की शनाख्त आबिद भट्टी के नाम से हुई। शदीद जख्मियों में हक नवाज और रमजान शामिल हैं। और 10 लाख की आबादी की तहसील जामपुर का अकलौता नादरा दफ्तर स्टाफ की कमी और कम वसाइल के बायस आवाम की जरूरियात पूरी करने में नाकाम है। इसी बारे में बात करेंगे जावेद इकबाल से। जावेद बताएगा क्या सूरत हाल है नादरा ऑफिस की? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं जामपुर नादरा सेंटर के सामने जहां पर लोगों को काफी मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ता है। यहाँ खवातीन अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जलीलो ख्वार हो रही है जबकि लोगों का एक जमे गफीर यहाँ पर जमा है। अगर हमने इस हवाले से जब नादरा ऑफिस सेंटर से बात की तो उन्होंने अपनी मजबूरी का इजहार करते हुए बताया कि जितना तक हमारे पास वसाइल हैं हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी कैपेसिटी से ज्यादा जो लोगों के शनाख्ती कार्ड और उनकी जो फिंगर प्रिंट्स की वेरिफिकेशन है और दूसरी तरफ बेफार्म जो है ना वो भी बनाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं। सर ये बताइएगा कि जो नादरा की सूरत हाल देख रहे हैं, इन हालात में जो काम हो रहा है आप क्या कहेंगे? हुकूमत से क्या मुतालबात करना? सर हुकूमत से हमारा ये मुतालबात है, हम बहुत ही मुश्किल हालात में है इस वक्त। हमारा जो इस वक्त काम हो रहा है, हमारी खवातीन हमारे मर्द हजरात बहुत ही मुश्किल में है।
हम इस मुश्किल घड़ी में मुतालबा है कि हमारा दूसरा सेंटर बनाया जाए। इस वक्त जो हमारी खवातीन हैं हम आपके सामने हैं, तकलीफ में हैं, कोई लैंड बनी हुई हैं, धूप कड़ी धूप में पड़े हुए हैं लोग, तकलीफ दे है। हमारा मुतालबा ये दूसरा सेंटर बनाया जाए। जी मुतालबात यही किए जा रहे हैं कि दूसरा सेंटर जो है बनाया जाए ताकि यहाँ के लोगों की जो मुश्किलात हैं वो कम। जी आप कब से आए हुए हैं, क्या मुश्किलात है और क्या मुतालबात करेंगे आप? बहुत से दिन हो गए, जुम्मे का बताया था, मैं सुबह से इधर खड़ा हूँ, लाइन पे खड़ा हूँ। पहले उन लोगों ने पर्चियाँ दी हैं, लेकिन अपने दोस्तों को बुला बुला कर अंदर ले जा रहे हैं। लेकिन हम गरीब तबका कहाँ चले जाएं, या और कोई सेंटर बनाया जाए या आप इस हमारी खिदमत पूरी करें। किसी का बायोमेट्रिक करना है, किसी को अपना बेफार्म बनाना है, किसी को शनाख्ती कार्ड का मसला है, किसी को अपना जो सेंटर नया आया जो खवातीन के लिए बुजुर्ग 65 साल का उम्र ये यहाँ खड़ा हो सकता है, धक्के दे रहे हैं। लेकिन हमारी ये मजबूरी है, हम कहाँ चले जाएं और कोई ऑप्शन हुकूमत हमारे पास लाए तो हम उनके साथ कोई मुतालबा। जी बिल्कुल, पब्लिक का लोगों सहूलियात देने में नाकाम है। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीमिया खान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अपने मेंबरान को इलाज की सहूलियात के लिए इकदाम। सदर चैम्बर ख्वाजा बशीर अहमद ने एक्सेल लैब के साथ मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम बताएगा। जी रहीमिया खान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मेंबरान को सहूलत देने के हवाले से मुख्तलिफ कंपनियों के साथ चैम्बर की तरफ से MOU साइन किए जा रहे हैं। अभी एक्सेल लैब के साथ MOU साइन किया है, इसमें चैम्बर मेंबरान को अपनी बीमारी की तशखीस के लिए वहाँ पर रियायत के साथ अपना टेस्ट करवा सकते हैं। ख्वाजा साहब, बड़ी अच्छी चीज़ है कि मुख्तलिफ इस तरह की सहूलियात दी जा रही हैं चैम्बर्स मेंबरान को तिब्बी सहूलियात के हवाले से। अगर उन्होंने टेस्ट करवाने हैं तो इस तरह की लेबॉर्ट्रीज़ के पास जाकर अपना टेस्ट करवा सकते हैं। तो कितने % यहाँ पे मिलेगी और कौन कौन से वो टेस्ट से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से हमने अपना इसमें चार्ज लिया है चैम्बर का, हम उस वक्त से इस बात में कोशा है कि हम अपने ताजरों को, अपने सनतकारों को, अपने चैम्बर मेंबरान को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें पहुँचाएँ। इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ कंपनियों के साथ MOU साइन किए हैं। इस सिलसिले की एक कड़ी है कि एक्सेल लैब से हमारा आज हमने MOU साइन किया है। तो ये चैम्बर मेंबरान जितने भी टेस्ट कराएंगे, इन्होंने मैं ऑफर कराई थी कि हम उसको 30% लेते हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पर इन्होंने इसको 30 से 35% तक बढ़ा दिया है। और मैं समझता हूँ कि अब हमारे मेंबरान ज़्यादा से ज़्यादा इससे इस्तेफादा करें। हमारे मेंबरान, उनकी फैमिली मेंबर जो भी वो कराना चाहेंगे उनको 35% रियायत दी जाएगी। और वैसे भी वो क्या कहते हैं, जान है तो जहान है। आजकल तो हर कोई टेस्ट भी कराता है, तो ये टेस्ट कराकर बंदा अपनी अपनी ज़िंदगी को महफूज रख सकता है इंशाल्लाह। इस सिलसिले में हमने MOU के एक्सेल लैब के साथ जो MOU साइन किया है, इंशाल्लाह ये इनके लिए भी अच्छी पेशरफ्त है और हमारे लिए भी इंशाल्लाह इसमें कामयाब। चैम्बर के मेंबर 35% रियायत मिलेगी। आसिम सिद्दीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रहीमिया खान में नहरों के टेल पर बैठे काश्तकारों को पानी की फराहमी समेत दीगर मसाइल हल करने पर किसान बोर्ड पाकिस्तान के वफ्द ने चीफ इंजीनियर अनहार बहावलपुर से मुलाकात की और उन्हें शुक्रिया के तौर पर अजरक का तोहफा पेश किया। बात करेंगे अतर लाशारी से। अतर बताएगा। जी बिल्कुल ऐसे कि आज किसान बोर्ड का एक वफ्द जो है वो चीफ इंजीनियर इरिगेशन के पास यहाँ पर आए हैं और उनको उनके जो काम मामला जो फंसे हुए थे उसकी बेहतरी के हवाले से आज उनको मुबारकबाद भी दी है और उनका शुक्रिया भी अदा किया है। इसी के ऊपर बात करेंगे चेयरमैन, मरकजी चेयरमैन किसान बोर्ड पाकिस्तान जहाँ हजूर बख्श लाड साहब भी हैं, जनूबी पंजाब के चेयरमैन भी यहाँ पर हैं, सदकाबाद के भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, भावलपुर से भी यहाँ पर लोग हैं। सर फरमाइएगा आज बुनियादी मकसद क्या था यहाँ आने का? आज बेसिकली तो हम रहीम यार खां के हमारे साहिबान जो हैं किसान बोर्ड के, वो 200 किलोमीटर का फासला तय करके यहाँ पहुँचे हैं और हम भी यहाँ आए हैं। तो मौजूदा चीफ इंजीनियर साहब जो हैं, इन्होंने यहाँ आकर जो पानी की सप्लाईज हैं टेल्स के ऊपर और पानी की चोरी है और उससे हटकर जो करप्ट किस्म के जो इसमें इरिगेशन में लोग थे उनके सदेबाब है, इन तमाम मामलात में इन्होंने बहुत शानदार स्टेप्स लिए हैं। और हमारा तो खासा रहा है कि किसानों को हमेशा शिकायत ही रही हैं। ये बड़े अरसे के बाद एक बहुत शानदार मौका मुयसर आया है कि हमारे चीफ इंजीनियर साहब जो हैं वो भी बहुत ही ऑनेस्ट और अच्छे इंसान हैं और हमारे एससी साहब जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मोहतरम चीफ इंजीनियर साहब की हिदायत की रोशनी में ये जो टेल्स हैं और ये पानी की सप्लाई है, ख़ास तौर पर जो खरीफ पिछला गया है और अब जो रबी जारी है, ये मिसाली हैं। आज तक ऐसे हमें नहीं मिल सका जो मौजूदा हालात हैं। जो मौजूदा हालात हैं, काश्तकारों को पानी फराहम करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मुल्तान फारूक डोगर का अचानक कहरोड़ पक्का का दौरा। फारूक डोगर की जेर सदारत म्यूनिसिपल कमेटी कहरोड़ पक्का का इजलास हुआ।
फारूक डोगर का म्यूनिसिपल कमेटी की हदूद में बायलॉज की खिलाफ वर्जी के तहत की गई तामीरात पर बरहमी का इजहार। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ने बिल्डिंग इंस्पेक्टर से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। आपको अपडेट कर रहे हैं, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मुल्तान फारूक डोगर का अचानक कहरोड़ पक्का का दौरा किया गया। उधर मुल्तान के सरकारी स्कूल्स में इंटर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल टूर्नामेंट जारी है। बात करेंगे अलिशबा से। अलिशबा बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान के सरकारी स्कूलों में स्पोर्ट्स की सरगर्मियों का आगाज़ जो है हो चुका था कल से, और आज जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन जारी है और बैडमिंटन के मुकाबले जो हैं जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट से 6 टीमों ने हिस्सा लिया है। मेरे साथ इस वक्त मेल्सी और मुस्लिम स्कूल्स की टीम मौजूद है। मेल्सी का मुकाबला गवर्नमेंट हाई स्कूल मेल्सी का मुकाबला खानेवाल से हुआ था। मेल्सी ने कंपटीशन जीता है। इसी तरह मुस्लिम स्कूल का मुकाबला मुल्तान पब्लिक स्कूल से हुआ था। मुस्लिम स्कूल ने कंपटीशन जीता है। तो पहले जीते हुए बच्चों से बात कर लेते कि उनको कैसा लग रहा है। जी बताइएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। हमने मुल्तान पब्लिक स्कूल को हराया और इंशाल्लाह अभी मैच खेल रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी मेल्सी से जो बच्चे आए हुए हैं इनसे बात कर लेते हैं। इतने दिनों बाद स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज हैं स्टार्ट हुई है, मेल्सी से आए हो, इतनी दूर से खानेवाल की टीम को हराया है, कैसा महसूस हो रहा है और ऐसी सरगर्मियां जरूरी हैं? जी हम बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट हाई स्कूल मेल्सी के वो हमें इस मकाम तक लेकर आए और हम यहाँ पर जीते हैं। इंशाल्लाह आगे भी जीतेंगे। स्ट्रगल करनी होगी, अगर कुछ करेंगे देंगे तो इंशाल्लाह आगे भी ऐसा अच्छा रिएक्शन मिलेगा। जी बिल्कुल, अभी भी जो है मुकाबले जारी हैं। 6 टीम जो है उनके मुआबैन मुकाबले होंगे और यहाँ पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी बच्चे आए हुए हैं और काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं क्योंकि कोरोना के बाद जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का आगाज़ कल से हुआ है और यहाँ पे जो गेम्स खेली जा रही हैं वो तो इंजॉय कर रहे हैं। बैडमिंटन मुकाबले जारी हैं। अलिशबा आप हमें अपडेट करें, शुक्रिया आपका।